घालवलं थोडासा भाई घुमो मत. हे तुझ्या मध्ये नाही ना फ्रीमध्ये पण ये किसने रखा ऊपर मुंबई को उठाओ नहीं या नहीं से ऊपर था साइड में रख उसको साइड में रखा बाइक रखा वहाँ पे अपना विशाल ध्यान से लेफ्ट 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 ये खाली बस मैम लेफ्ट लेफ्ट मैम लेफ्ट मैं वाइट करते हो असं पाहिजे ना रील रील ते सगळे उभे आहेत ते सगळे असे आहेत ना आप इनका बाइट लीजिए मैम देगी बाइट जी यस वेरी गुड मॉर्निंग मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई एम सेलिब्रेटिंग माई फर्स्ट योगा डे इन मुंबई टुडे and it's a very good initiative and I think main reason that I am here today is because ये एक children associated initiative है disease children के साथ plus उनको involve करके करना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उस वजह से मैं हूँ इधर आज and I think Amrita Fernandez ji has come up with something very very good with Divyaj Foundation जो उनका initiatives और awareness और health care initiatives भी बहुत सही है तो मैं बहुत सुनी हूँ बहुत देखी हूँ तो आज उनको सपोर्ट करने आई हूँ
I think it's a very good initiative and happy International Yoga Day. Let's make this a part of our life and bas ek din tak don't confine it. Make this your habit. Thank you so much. Merci. ये खाली बस है ये भाई मोबाइल ये लेफ्ट लेफ्ट मैडम बैठो ना यार। वेट वेट ये तो आगे लोगों नीचे थोड़ा पीछे लो ना, अंबानी नीचे हो। हाँ बस मैम लेफ्ट लेफ्ट सर लेफ्ट हो गया? मैडम आप नीचे बैठ जाओ। रोल है सर आ रहा है। सर आ रहा है आपको। ऊपर ले उसको। ये थोड़ा नीचे बैठ शांत हो जाओ। Can I speak? Should I? Thank you. Happy International Yoga Day to all of you. आप सबको 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई. And
Thank you, Amrita ji, for having me here. I think it's a wonderful initiative bringing all the BMC students and also children of the disease farmers and teaching them yoga, encouraging them to practice yoga and incorporate yoga in their daily lives. Uh, I think it's important to build healthy habits early in life. A lot of us, when we see others practicing yoga, we decide that, okay, one day we will start, we'll also start. But then we never start. So it's important that we learn it in childhood. So it's a great initiative. The children are being brought here and they are being encouraged to adopt yoga. And these days in our country also, the younger age group, children are also suffering from issues like obesity, anxiety, stress, and concentration, memory. So yoga is a one-stop solution for all these challenges which are faced by school-going children, and it is a great initiative that children start practicing yoga. So today we will try to give them a session and encourage our younger generation, because we are heading towards building a Viksit Bharat by 2047. And these children are the future of this country. They are the ones who are going to witness after 27 years the Viksit Bharat that we aim to build. So it's important that they are healthy and they are fit, not mentally, but also physically, emotionally. And that is only when they will be able to contribute their 100% to the growth and development story of our great nation, that is India, Bharat. Thank you very much. मैम एक बाइट कर लीजिए ना सर, आपका नेक्स्ट बाइट ले लेना। हाँ मैम प्लीज, कैसे मैम आज इंटरनेशनल योगा डे? It's a matter of privilege that to be here on the 12th International Yoga Day, which is organized by Amrita Ma'am under the Veg Foundation. We all know that yoga is our rich heritage. It's a way of life which is inculcated in us by our forefathers. It's a way to unite your physical body, your breathing and your mind. And I think it's a way to live a very, very healthy life. And on this International Yoga Day, by bringing this tradition to our children who need this healthy way of life, who need to learn that, because these are the days where there are multiple distractions. Children are facing a lot of challenges in learning, challenges in coping up with life, and yoga is the way to go. Yoga will tell them how to live not only a physically healthy life but a mentally and spiritually healthy life. So today the Veg Foundation has organized the celebration of Yoga Day by inviting kids, children of farmers, children from BMC school, and they would get to know what kind of changes, positive changes yoga will bring in their life. So I wish everybody a very, very happy International Yoga Day and best wishes for this program today. Thank you. महाराष्ट्राचे लाडले मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजीचे निर्देशानुसार आज योग भारतानं दिलेली विश्वनं सर्वात मोठी गिफ्ट झाली आहे. आज इथे दिव्यास फाउंडेशनतर्फे आयोजित हा योग एक अतिशय चांगला सुयोग आहे की त्यामध्ये जे महाराष्ट्राचे गावाचे मुले मुली ज्यांचे कोई नाही त्यांच्या दिव्यास फाउंडेशन असा करून अमृताजी नेहमी हा कार्यक्रम करता. मी दिव्यास फाउंडेशन अमृताजीने सर्व लोकांना मनापासून त्यांचे अभिवादन करतो. हा कार्यक्रम लोक चळवळ व्हावा अशी ईश्वरी प्रार्थना करतो.
वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत सारे बच्चे आए हैं। आई थिंक योगा इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम आवर हेरिटेज, आवर कल्चर। मैंने योगा कई बार किया है और मुझे ऐसा लगता है दैट आई थिंक यू नो योगा इज़ समथिंग विच इज़ माइंड, बॉडी एंड सोल। और ऐसी बहुत कम यू नो चीज़ें हैं जहाँ पे आप तीनों चीज़ों को साथ में अलाइन करके you know, you can be a healthier version of yourself, you can be more flexible, you can be stronger, your internal organs can be healthier. So I think it's fantastic and I'm very, very happy to be here. One last question, how does it feel about Amrita Fadnavis and the initiative of being with deceased farmers children? No, it's my privilege to be here today. इतना खूबसूरत initiative है. I feel I'm fortunate कि अमृता जी ने मुझे बुलाया है and very happy to be here and participate and support in every way. सर कॉकटेल 2 को काफी ग्रेट रिस्पांस मिला है। Yeah. टीम काफी अच्छी हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, very happy. We guys are partying, we're having a blast, we're loving it. The film has started fantastically and we're all very proud. बहुत मेहनत से हमने फिल्म बनाई है और thank you to everybody for all the love and we hope that you know we get more love and yeah, we're just very happy and very thankful. Thank you guys. माध्यम से मदद की जा रही है। महाराष्ट्र जेल विभाग प्रोजेक्ट आर्थर रोड जेल के बंदियों के लिए वेलनेस कार्यक्रम और प्रमाणित कौशल विकास कार्यक्रम के साथ साथ ठाणे जेल में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई। दिव्यज फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत आत्मीयता से काम करता है, जिसमें समुद्र तट की सफाई अभियान, ऐतिहासिक स्मारकों की सफाई इत्यादि शामिल हैं। वेलनेस ड्राइव के अंतर्गत कैंसर से पीड़ित बच्चों को सहायता और समर्थन प्रदान किया गया। आर्थिक सहायता, वंचित महिलाओं का सशक्तिकरण, पालघर के आदिवासी समुदायों को समर्थन देने के लिए, कुपोषित बच्चों और उनकी माताओं के विकास के लिए दिव्यज फाउंडेशन ने शिशु माता संगोपन केंद्र की स्थापना करने का कार्य प्रारंभ किया है। बाल संरक्षण उपक्रम, गुड टच और बैड टच जैसे कार्यक्रम स्कूलों में बच्चों के बीच यौन शोषण के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए किए जाते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता प्रकल्प, हमने महिलाओं के स्वास्थ्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रकल्प में शामिल किया है। मुंबई में गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बच्चे बोले मोरया की शुरुआत बीएमसी और मुंबई पुलिस के सहयोग से की गई। इस अभियान के अंतर्गत बीएमसी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई भर के 2500 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हरित उत्सव के संदेश को आत्मसात किया। महिला कार्यबल के लिए वित्तीय साक्षरता पहल, महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने हेतु आवश्यक वित्तीय ज्ञान प्रदान करना। ये पहल महिलाओं द्वारा सराही गई और उन्होंने वित्तीय योजना के महत्व को समझा। बीएमसी स्कूल के बच्चों के लिए रामायण फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग, बच्चों में सांस्कृतिक गर्व और मूल्यों की भावना जागृत करने के लिए रामायण पर आधारित फिल्म की प्रस्तुति। बच्चों के चेहरों पर गर्व और प्रसन्नता की झलक साफ दिखी। प्रोजेक्ट दिशा ब्यूटिशियन सर्टिफिकेशन कोर्स, मुंबई की वंचित महिलाओं को कुशल ब्यूटिशियन बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर करने वाला प्रोजेक्ट दिशा। महिलाओं के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है और ये पहल निरंतर जारी रहेगी। दिव्यज फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के शहीदों तथा पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि एवं सम्मान अर्पित करने के उद्देश्य से आयोजित एक भावपूर्ण समारोह था। इस मंच ने देश के वीर जवानों, सुरक्षा बलों और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को नमन किया। पिछले 8 वर्षों में किए गए कार्यों की पहचान के रूप में दिव्यज फाउंडेशन को निम्नलिखित पुरस्कार और मान्यता प्राप्त हुई हैं।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिट्टी के सितारे इसे वंचित बच्चों के लिए आयोजित संगीत प्रतियोगिता के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व माननीय गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिव्यज फाउंडेशन को कोविड-19 के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य के लिए मान्यता और पुरस्कार प्रदान किया गया है। नमो सिने टीवी निर्माता संघ द्वारा 2020 का मेड इन इंडिया आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऐसे कई पुरस्कार हमें प्रेरणा। तालियां हो जानी चाहिए। Shahid Kapoor ji, an actor known for his exceptional talent, dedication and unforgettable performances. A very warm welcome, Shahid sir. क्या ही सुंदर और प्रेरणादायी प्रस्तुति थी दिव्यज फाउंडेशन की। इस वीडियो के माध्यम से हमें दिव्यज फाउंडेशन के कार्यों और उसके सकारात्मक प्रभाव को और करीब से जानने का अवसर मिला। ऐसे प्रयास समाज में आशा और बदलाव की नई किरण लेकर आते हैं। सफल लोगों की यात्राएं हमेशा प्रेरणा देती है और जब हमें उनके अनुभव उनकी जुबानी सुनने का अवसर मिलता है तो उनसे मिलने वाली सीख और भी मूल्यवान हो जाती है। अब मैं अपने माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने सुविचार हम सभी के सामने रखें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और समावेशी विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान ये दे रही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार संक्षिप्त रूप में हम सभी के सामने रखें। तालियां हो जानी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस मंच पर हम सब के बीच मौजूद दिव्यज फाउंडेशन की संस्थापक और राज्य की प्रमुख समाजसेवी सम्माननीय श्रीमती अमृता फडणवीस जी, मंच पर मौजूद आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि और एक लोकप्रिय अभिनेता श्री शाहिद कपूर जी, हमारे माननीय मंत्री महाराष्ट्र शासन से श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, श्रीमती अश्विनी भिंडे जी, श्री लीला जी, श्री शांतिलाल मुथा जी, डॉक्टर निवेदिता श्रेयांश पिल्ले जी, श्रीमती सीमा सिंह, श्री मजहर नाडियाडवाला, डॉक्टर मिकी मेहता, श्रीमती पल्लवी श्रीवास्तव, श्री कविन शाह और आज के इस अवसर पर दिव्यज फाउंडेशन की टीम के सभी सदस्य, सभी हमारे मीडिया के साथीगण, और मुझे बताया गया कि आज यहाँ हमारे बीएमसी के सारे बच्चे विशेष तौर से योगाभ्यास के लिए आए हुए हैं और हमारे दिवंगत किसान भाइयों के परिवारों से भी बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो आप सबका आज के इस अवसर पर बहुत ढेर सारा अभिनंदन, स्वागत और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं अमृता जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच यहाँ आमंत्रित किया। आज एक बहुत ही खास अवसर है। आज योग दिवस है और योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, माइंड, बॉडी, सोल, इन सब का आपस में जुड़ना, तभी हमारे अंदर एक सेंस ऑफ होलनेस, हैप्पीनेस और वेलबींग, ये तीनों चीज़ें आती हैं और जीवन में हम अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको प्राप्त करते हैं। मुझे खुशी है कि दिव्यज फाउंडेशन योग के इस मूल अर्थ को स्वीकार करते हुए योग को ही समाज को जोड़ने का आज माध्यम बना रहा है। और अभी जो ऑडियो विजुअल हमने देखा उसमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की गतिविधियां हैं
समाज के हर तबके तक आप पहुंच रहे हैं, तो समावेशिता हमारी सरकार के गवर्नेंस का एक कोर प्रिंसिपल है और आप समावेशिता के उस सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए दिव्यज फाउंडेशन के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आज आपने योग को उसका माध्यम बनाया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। योग हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदेमंद है जानते तो हम सब हैं और तय भी करते हैं कि ठीक है अब हम भी योग करना शुरू करेंगे, लेकिन बहुत बार हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बचपन से, छोटी उम्र से कभी ये आदत नहीं डाली होती है और हमारे जैसों की जो उम्र है उसमें आने के बाद योग को अपने जीवन में अंगीकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन आज मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मुझे लगता है कि हर अच्छी आदत की शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। और आप सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब ये समझिए कि योग जो भारत की प्राचीन संस्कृति का इतना बड़ा एक हमारी एक विरासत है, उसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में पहुंचा दिया है। आज केवल भारत में योग नहीं हो रहा, दुनिया के तमाम देशों में लोग योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो 146 करोड़ भारतीयों को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए और आप सभी बच्चों को योग आज जो आप सीख कर जाएंगे उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। रोज आप इसको करने की कोशिश करिए और यही सही उम्र है। आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से हम सभी को आह्वान करते हैं कि हमें मोटापे के खिलाफ लड़ना है, ओबेसिटी के खिलाफ लड़ना है। और ये ओबेसिटी सिर्फ बड़े लोगों में नहीं हो रही, ओबेसिटी का शिकार आज छोटे छोटे बच्चे भी हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी मोटापे की समस्या हो रही है। तो अगर आपको उससे अपना बचाव करना है, आपको हेल्दी रहना है, और आपको केवल शरीर से हेल्दी नहीं रहना, आपको इमोशनली हेल्दी रहना है, आपको साइकोलॉजिकली हेल्दी रहना है और आपको स्ट्रांग बनना है। आप जो भी जिंदगी में आपके सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहें और योग से अच्छा उसका कोई तरीका नहीं है। और आजकल बच्चों को बहुत सारे एंजाइटी और स्ट्रेस इश्यूज भी होते हैं। हम लोग देखते हैं कि बच्चों को अगर एग्ज़ाम का टाइम आता है, परीक्षा का टाइम आता है, तो बहुत तनाव होता है, वो चिंता करते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ वो बहुत तुलना करते हैं, मेरे इस साथी को इतने मार्क्स मिल गए, मुझे इसमें पीछे रह गया, मुझे इसमें आगे जाना है। इस तरीके की बातें आती हैं कि नहीं आती हैं? तो ये सारा स्ट्रेस जो है, ये सारा तनाव जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप योग करना प्रारंभ करेंगे। तो आपका मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, ये सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए मैं सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आज आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री दुनिया को योग की प्रेरणा दे रहे हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी कोलकाता से योग करके पश्चिम बंगाल के वासियों को और पूरे देश के हमारे 146 करोड़ लोगों को योग का संदेश दे रहे हैं। मैं आपके बीच आई हूँ, इससे पहले सुबह 6 बजे हम समुद्र के किनारे योगाभ्यास 1 घंटे का कर चुके हैं, अभी आप सब भी करेंगे। तो सभी लोगों को आज के दिन में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज के दिन के मायने सही तभी होंगे जब आज जो भी आप सीखेंगे वो आगे भी आप उसका पालन करेंगे और आप धीरे धीरे करके रोज कोशिश करेंगे कि आप योग करें और माइंड बॉडी सोल का जो कनेक्ट है उसको बनाएं। तो ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, फिट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प अस टू बिल्ड अ विकसित भारत बाय 2047। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और जनसेवा के क्षेत्र में लोढ़ा जी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। महाराष्ट्राचे आराध्यदेव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आज दिव्याज फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस योग दिवस के अंदर दिव्याज फाउंडेशन की संस्थापिका, हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत श्रीमती अमृता देवेंद्र जी फडणवीस, शाहिद कपूर जी, सब बच्चों ने शाहिद कपूर जी की कोई न कोई पिक्चर तो जरूर देखी होगी ना। हाँ, तो अभी इनका भाषण सुनना मज़ा आ जाएगा। हमारे सबकी केंद्रीय मंत्री, और कोई यदि परिचय नहीं कराता केंद्रीय मंत्री तो हमको लगता है कोई स्टूडेंट आई है ऐसी, अनुप्रिया पटेल जी, मुंबई की कमिश्नर
जिन्होंने आने के बाद मुंबई के अंदर हम सब लोगों को एक नई सुगंध, नई हवा और नया भविष्य दिखाने के लिए हम सबको प्रेरित किया है, ऐसी श्रीमती अश्विनी भिड़े जी, जो महाराष्ट्र के गांवों के अंदर कोने कोने में सैकड़ों समय से सैकड़ों बच्चों को लेकर अपना जीवन जिन्होंने दे दिया है। अनबिलीवेबल है जिनकी स्टोरी। और इसीलिए अमृता जी के हर प्रोग्राम में वो शांतिलाल मूथा जी के मूथा फाउंडेशन को बुलाते हैं और मूथा जी अपनी पूरी बारात लेके आते हैं, बच्चों को, किसानों को, मजदूरों को, जब जो जिस तरह का कार्यक्रम हो। ऐसे माननीय शांतिलाल मूथा जी, श्रीलता जी, सीमा सिंह जी, मिक्की मेहता जी, डॉक्टर पिल्लई नडियादवाला जी, पल्लवी श्रीवास्तव जी, कविन साहा। और यहाँ प्यारे बच्चों, समय की मर्यादा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर योगा के अंदर अभी हमने जब सीवी देखी तो हमको पता है कि सबको पता लगता है, पहले से मालूम भी है, पर आज और प्रेरणा मिली कि अमृता जी का दिव्यास फाउंडेशन जो कुछ भी समाज सेवा के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए महाराष्ट्र में ज़रूरत है वो सारे काम कर रहा है। और ये 1-2 साल से नहीं, 8 साल से काम कर रहा है और एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है। अभी शाहिद कपूर जी की जो नई पिक्चर आई है कॉकटेल, तो इन्होंने जो प्रोग्राम का वेरिएशन लिया है उसमें कॉकटेल है, उसमें समाज सेवा भी है, स्पोर्ट्स भी है, संगीत भी है, योगा भी है, कौशल्य विकास भी है, ऑल टुगेदर है। इसलिए मैं अमृता जी के विशेष अभिवादन करना चाहता हूँ। और दिव्यास फाउंडेशन का नाम है, मुझे याद है एक प्रोग्राम में हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं महिलाएं, मेरी माँ से मैं बहुत प्रेरित हूँ, मेरी पत्नी मुझे बहुत सहायता देती है, मदद करती है, पर जो मेरी लेडी लक है वो मेरी लाडली बेटी दिविजा है और उसी के नाम पर दिविजा फाउंडेशन जो चल रहा है। इसलिए अमृता जी और हम सब लोग उसको बहुत अच्छे मन से, बहुत सहयोग के साथ में, सबको आनंद आता है जब वो आमंत्रित करती हैं। मैं चूँकि देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में काम करता हूँ, 2000 से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे राजनीति, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज उन्होंने योगा के अंदर केवल भारत ने दुनिया को बहुत कुछ सैकड़ों सालों से दिया, पर अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर भारत का एक्नॉलेजमेंट दुनिया यदि किसी चीज़ के लिए जानती है तो वो योगा के लिए जानती है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी योगा करा दिया, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे भी योगा करा दिया और भारत के गांव-गांव में योगा करा दिया। और वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनके मुख्यमंत्री के रूप में मैं केवल एक ही बात कह के अपनी समाप्त करूंगा, योगा माने साधना। अभी अनुप्रिया जी ने कहा कि योगा केवल एक स्पोर्ट्स नहीं है, केवल एक इवेंट नहीं है, ये पूरे शरीर को, मन को, तन को, फ्यूचर को, सबको एक साथ में जोड़ के रखता है। और वो यदि देखना हो तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पिछले 12-15 साल में इतने उसने हाई और लोज देखे हैं कि उसको कोई योगी उसको कंट्रोल कर सकता है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे सबसे अच्छे योग गुरु कोई हैं तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हैं। उन्होंने पिछले 14 सालों के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति को पूरा योग से कंट्रोल करके रखा है। आज इस योग दिवस के अंदर हम सब लोग मिलकर उनके सपने को विकसित महाराष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए ये भी कार्यक्रम अपना रोल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन्होंने मुंबई के विकास और सार्वजनिक सेवाओं को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अश्विनी जी, कृपया अपने संक्षिप्त विचार हम सभी के सामने रखें। नमस्कार। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अनुप्रिया पटेल जी, महाराष्ट्र राज्य के कौशल विकास मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिस दिव्यास फाउंडेशन ने आज के बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनकी फाउंडर अमृता फडणवीस जी, मंच पे उपस्थित और सर्व सम्माननीय अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के ये सुंदर अवसर पर ये बच्चों को बुला के ये प्रोग्राम करना, इसके लिए मैं दिव्यास फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपने बहुत प्रेरणादायी प्रोग्राम से आपकी एक मजबूत पहचान दिव्यास फाउंडेशन ने बना ली है और उसी सिलसिले को आगे लेते हुए पिछले बहुत सालों से ये योगा दिन के अवसर पर बच्चों को बुला के उनको योगा की शिक्षा देना, ये काम वो दिव्यास फाउंडेशन कर रही है और वो आज भी चालू है। अब मेरे पहले वाले दोनों जो स्पीकर्स थे, दोनों मंत्रीगण थे, उन्होंने योगा के बारे में आप सबको बताया है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बच्चों कि योगा ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। गहरी सांस लेना, शरीर को थोड़ा खींचना, मन की एकाग्रता करना, यही काम है।
और इससे योगा का जो अर्थ है जो है जुड़ना, जिसमें शरीर, मन और अपनी आत्मा, ये तीनों का जो जुड़ना है वो उसी से साध्य होता है। अगर आप रोज़ 10 मिनट भी योगा करते हो तो आपकी फिज़िकल जो ताकत है वो भी बनी रहेगी, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और आज पढ़ाई के जो अलग अलग चैलेंजेस आपको है उसमें एक मन का जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो भी आप कर पाएंगे। तो आज आप इस अवसर पर दिव्यज फाउंडेशन के ये प्रोग्राम में आप ये योगा का जो बेसिक ये प्रिंसिपल्स है वो आप ज़रूर सीखेंगे, उसको आपको अंगीकार करना है और रोज़ के आपके जीवन में उसकी प्रैक्टिस करनी है। और उसी से आगे जाके अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के लिए स्वस्थ भारत का जो सपना देखा हुआ है उसी में आप सब लोग कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो ये खुद को आगे ले जाने के लिए भी और देश को आगे ले जाने के लिए भी ये योगा को अंगीकारना बहुत ज़रूरी है। और इसी का रिकग्निशन हम आज के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के अवसर पर करते हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको योगा दिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप इसको आगे ले जाए इसीलिए बधाई देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री लीला जी को। एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र से भी ये जुड़ी है और समाज के प्रति अपनी संवेदनशील सोच के लिए जानी जाती है। श्री लीला जी, कृपया अपना संदेश हम सभी तक आप पहुंचाइए। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए श्री लीला जी के लिए। Namaskar, a very good morning to all my lovely kids here and all our respected dignitaries on stage. I was asked not to take a lot of time, so I'll just tell you all the importance of yoga according to me. मुझे बहुत हेल्प किया। आई थिंक बचपन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था ब्रीदिंग का, तो मैं मुंह से सांस लेती थी। उस टाइम पे आई रिमेंबर आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड बिकॉज ऑफ विच माई ब्रेथ वर्क गॉट करेक्टेड। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आई फील लाइक योगा हेल्प्स विद अलॉन्ग विद शरीर एंड योर हेड स्पेस। सो आई जस्ट एनकरेज कि सबका रूटीन में योगा करना एक ग्राउंडिंग चीज़ होता है, सेंटरिंग चीज़ होता है, एंकरिंग चीज़ होता है। So I feel like this should be a habit, and मुख्य कारण I feel like I'm here to for you kids. Loads of love to you. Thank you so much, and great initiative should be supported. Thank you. धन्यवाद श्री लीला जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री शांतिलाल मुथाजी को। भारतीय जैन संगठन के संस्थापक श्री शांतिलाल मुथाजी ने माध्यम से हजारों जीवों को नई दिशा देने का प्रेरणादायी कार्य किया है। मुथाजी, आपसे अनुरोध है कि कृपया 2 शब्दों में अपना संदेश हम तक पहुंचाइए। आदरणीय दिव्यास फाउंडेशन की संस्थापक अमृता वहिनी, शाहिद कपूर, मंगल प्रभात जी लोढ़ा, अश्विनीताई भिड़े, सभी मंच पर उपस्थित भाइयों बहनों और माताओं, मैं सिर्फ 1 मिनट ही लूँगा। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। 2015 में हमने मंगल प्रभात जी पूना में जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके 1000 आत्महत्या किए हुए किसान के बच्चों को पूना में लाया, जिनका स्वागत करने के लिए आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पूना में आए। लेकिन जब ये इवेंट है कि आत्महत्या किए हुए शेतकरी के बच्चे आ रहे हैं, तो अमृता वहिनी खास उनके साथ उस प्रोग्राम के लिए पूना में आई। मतलब उनके अंदर की जो प्रार्थना है वो मैं कहना चाहता हूँ। और सिर्फ पूना में आई नहीं, आज 12 साल हो गए, वो हर साल 1000 हमारे आत्महत्या किए हुए किसानों के बच्चों को योगा डे को यहाँ बुलाती है। इतना ही नहीं, ये बच्चों को वर्षा पे ले जाके खाना खिलाने का काम हर साल आदरणीय अमृता वहिनी करती है। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने पूना में आकर ये बच्चों को मिलकर ये कहा कि अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप, मेरा ये नंबर है, ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आदमी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी हो, इतनी बार आकर लोगों को मिले, ये कहे, फिर फ़ोन आते हैं बच्चों के कुछ कारण से तो मुझे फ़ोन करे,
और हर साल ये बच्चों के ऊपर लगातार प्रेम करती है। और ये बच्चे मैडम के वार्ड दिवस के दिन, जन्म दिवस के दिन इतनी खुशियाँ मनाते हैं कि उनके लिए ये दसरा और दिवाली होता है। ये सब बच्चों का एक दिन का संबंध नहीं है, ये सब बच्चों का लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आदरणीय अमृता वहिनी से हमारे ये सब बच्चों का है। मैं अमृता वहिनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बच्चों को अपने बच्चे करके संभाला हुआ है और लगातार उनकी तरफ देखते हैं, कुछ भी उनकी कठिनाइयों को देखते। आज भी रात को वर्षा पर इनका खाना है और इनका सम्मान है। मैं ऐसा ही कहूँगा कि भगवान अमृता वहिनी को लंबी उम्र दे और इस तरीके की सेवा करते रहे। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अमृता फडणवीस जी को, एक पूर्व बैंकर, प्रसिद्ध गायिका और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता और सेवा भावना अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अमृता जी, हम आपके विचार जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तालियां हो जानी चाहिए अमृता मैम के लिए। मंचावर उपस्थित श्रीमती अनुप्रिया पटेल मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली जस्ट फॉर योगा एंड आवर चिल्ड्रन। श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिन्होंने हर बार हमारा पूरे तरीके से साथ दिया है। श्रीमती अश्विनी भिड़े, द बैकबोन ऑफ बीएमसी, और आपके बारे में जो इतना सोचती है। शाहिद कपूर जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड व्हाट टू से अबाउट यू। फिटनेस आइकन है हमारे बच्चों। आप अगर किसी की तरफ देख के कुछ करना चाहते हो तो हमारे इंस्पिरेशन है शाहिद कपूर जी, और उनकी अभी एक मूवी आ रही है कॉकटेल 2। लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रैंड सक्सेस ऑफ दिस मूवी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। श्रीलीला मैडम, who's a great star in the making and best of luck to you। श्री शांतिलाल मुखर्जी, जिन्होंने देश प्रेम और आपका प्रेम अपने मन में रखते हुए आगे की पूरी अपनी जर्नी चालू रखी है। निवेदिता मैडम, सीमा सिंह मैडम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। श्री मजर नाजियावाला, संपत सर, मिकी सर, पल्लवी श्रीवास्तव, कविन शाह, दिव्यज के मेंबर्स, सुरेश यादव जी और सभी बच्चों को, सगळ्या मुलांना माझा नमस्कार। धन्यवाद आज इथे येण्यासाठी। माईक आज मी काही जास्त बोलणार नाही, सगळ्यांनी बोललंय। आपल्याला आता योग करायचा आहे। फक्त एवढं बोलीन, आपण एक प्रतिज्ञा घेऊ शकतो का? आज मी इथे योगा करणार आणि याच्यानंतर रोज योगा करणार। मैं रोज योगा करूंगा या करूंगी। बोलिए, मैं रोज योगा करूंगी। एक भी दिन छुट्टी नहीं योगा से। आपको रोज योगा करना है, खुद की हेल्थ के लिए, खुद की मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए। और आपके घर में सबको योगा करवाइए। योगा बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए, और इसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं। मुथा जी, अश्विनी मैडम, सब आप पे बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत आपकी तरफ उनका ध्यान रहता है कि आप ठीक रहे, आपका सब अच्छा चले, तो उनको सपोर्ट कीजिए। कैसे करेंगे आप खुद पे ध्यान रख के स्वतःकडे लक्ष देऊन तुम्ही स्वतःला सपोर्ट कराल तर नक्की आपल्याला आज सुरुवात आहे आपली, आणि रोज योगा करायचा। आणि मी विचारणार की तुम्ही योगा केलाय की नाही रोजचा, तर मला तुम्ही प्रॉमिस देता रोज योगा करायचा आहे। एवढंच म्हणून मी 2 शब्द संपवते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी। आपके प्रेरणादायी विचार और आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए अत्यंत मूल्यवान है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय अभिनेता शाहिद कपूर हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी। शाहिद कपूर जी ऐसे कलाकार हैं जिन्हें वर्षों से दर्शकों का भरपूर प्यार और सराहना मिलती रही है। उनकी हाल ही में प्रदर्शित फिल्म को भी दर्शकों का शानदार प्रतिसाद मिला है।
जिसने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वे देश के सबसे प्रिय और सफल अभिनेताओं में से एक है। हम पर्दे पर उनकी प्रतिभा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास छिपा होता है। ये वही गुण है जो योग की मूल भावना से भी जुड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आज यहाँ उपस्थित बच्चों और युवाओं के लिए उनका जीवन और उनकी यात्रा प्रेरणा का एक सुंदर उदाहरण है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम सभी शाहिद कपूर जी का मंच पर स्वागत करते हैं। शाहिद जी, आपकी बातों और अनुभव सुनने के लिए हम सभी को इंतजार है। द स्टेज इज योर्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे? दिस इज़ अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। इतना अच्छा वेन्यू है, यहाँ तो हमें कभी कभी डांस करने के लिए भी ये वेन्यू नहीं मिलता, इतना बिजी रहता है। और आप लोगों के लिए अमृता जी ने ये वेन्यू रखा है। आज का दिन बहुत अच्छा है। योगा हमारे देश की, हमारे पास्ट की विरासत है और आप हमारे देश का फ्यूचर हैं। और अगर हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर साथ में आ जाए तो हमारा देश कितना स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यार, तुम लोग पहले योगा करो, फिर ज़ोर से बात करो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फैंटास्टिक। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है। बहुत अच्छा दिन है, एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत। योगा आपके मन को खुश रखता है, आपके बॉडी को स्ट्रांग रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है और आपके जितने भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रखता है। और जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो, अपना बेस्ट वर्जन। और ज़िंदगी में वही करना है, किसी और के साथ compete नहीं करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मम्मी पापा को प्राउड करना है और लोगों को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट यू गाइज एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर टुडे। ऑल द बेस्ट। के लिए, अमृता मैम के लिए और अनुप्रिया जी के लिए और एक स्माइल दीजिए क्योंकि आप सभी सेल्फी में आने वाले हो शाहिद जी के साथ। Thank you so much Shahid sir for your inspiring words and for having such candid conversation with our kids. थैंक यू सो मच। अब मैं सभी मेहमानों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने नीचे योगा मैट पर जाकर स्थान ग्रहण करें। हमारे बच्चे भी इस योगा सत्र में हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर मिकी मेहता विल नाउ टेक ओवर द स्टेज फॉर गिविंग होलिस्टिक योगा टीचिंग टू ऑल ऑफ अस। हमारे मान्यवर और अतिथियों का फिर से धन्यवाद। Make it okay. Hello, hello, hello. डॉक्टर मिकी मेहता, जिनका नाम सुनते ही स्वास्थ्य, ऊर्जा और सकारात्मक जीवन शैली की बात याद आती है। मेरा भी। हेलो 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 हेलो। उनका नाम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ना ले तो अधूरा सा लगता है। योग में हम स्वीकृति में आ जाते हैं और फिर हम समर्पण में, फिर हमें मिलता है पूरे जग का समर्थन, गले मिलेंगे अपने आप को, फिर हम हो जाएंगे समर्थ, फिर हो जाएंगे सक्षम, फिर मिल जाएगी हमें सिद्धि और सिद्धि से मिलेगी हमें समृद्धि। और इससे सिंपल कौन करेगा? अभी हम गहरी सांस भरेंगे। जब हम गहरी सांस भरेंगे
तो याद रखना, आपकी एक सांस आपके मस्तिष्क और आपकी नाभि के दिए जलाती है, ऊपर और नीचे साथ में। तो यहां से जब हम गहरी सांस भरते हैं तो हमारे लंग्स के पांचों क्षेत्रों में वायु, ऊर्जा, प्राण, नाभि के नीचे से डायफ्राम ऊपर आता है। और जब आपका डायफ्राम 12 सेंटीमीटर चलता है तो आपके टी सेल्स टाइटैनिक पूरे जगत को समेट लो। अब यहां से ऊपर हर दिशा में जैसी आपकी दिशा होगी वैसी आपकी दशा होगी। अब हम बैठ के अपने आप को गले मिलते हैं महाबंध में। नीचे से मूलधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, जलंधर, विशुद्धि, सहस्त्रा और आज्ञान चक्र, और उठ जाते फिर से उठ जाते। भारत को विकसित बनाना है तो दौड़ के बगैर कैसे हो सकता है। चलो हम एक लक्ष्य को कर, हमारी संस्कृति में समभावना है, हमारी संस्कृति में समर्पण है, और हमारी संस्कृति में सभ्यता है। नमस्ते। योग का एक दर्शन है स्थिरम सुखम आसन। Exercises should never be a punishment, they should be a celebration. तो हम बैठ के स्थिरम सुखम आसन करेंगे। बैठ जाए सब। कैमरामैन आपकी तरफ से मुझे कोई देख नहीं रहा है। और एक महाबंध के लिए जेंटल से 3 इंच या 2 इंच अपने पेट को, नाभि को सिकोड़ दे और मूलधार को कस के बंद करें और एक इमेजिनरी पॉइंट पे दोनों को मिला दें। सो टेक अ डीप ब्रेथ आउट। सिर्फ इतना, बस ज्यादा नहीं, पेट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ब्रीथ इन एंड अप अगेन। अब हम क्या करेंगे, फेफड़े हमारे खुले हुए हैं, अब हम यहां से ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन एंड आउट। रिलैक्स। पूरे दिन में, रात में नकारात्मक ऊर्जा हम लेके चलते हैं, तमस गुण बढ़ता है, तो हमें सत्व गुण लाने के लिए। ओके गुड। हा हा। जब आप हा करते हो ना तो आपके फेफड़ों के 5 फेफड़े खाली होते हैं। जब वो खाली होते हैं तो आप भर जाते हो, क्योंकि पात्र जब खाली होगा तब भी भरेगा ना यार। तो योग में खाली होने की कला है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो विलोमा पे ध्यान दें। योग खाली होने की कला है। तो अब हम क्या करेंगे, शायद जी अगर आप आगे आते हैं, ताल से ताल मिला यार। चलो हम हमारी दाहिनी नाक बंद करते हैं एंड वी टेक अ डीप ब्रेथ। बाएं से सीमा जी, अश्विनी जी, मैडम मैं आपका नाम भूल गया। Now change, you know the alternate breath, Anupriya Patel. Left right breathing brings you into the flow, synchronicity, and most importantly, equanimity, compassion, intuition, foresight, insight. This is what yoga gives you. योग के लिए ताली बजाओ। ठीक है, अभी हम शाहिद जी को थैंक यू बोलेंगे एक हास्य के साथ। Thank you for coming, Shahid. I know you live just 1 minute away, but thank you for coming. We take a deep breath. हास्य करेंगे। हा हा। Take a deep breath. Woo woo. Now हम एक दूसरे को देख के हंसेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव भी एक हाथ मार मार के योग सिखाते हैं, सदगुरु जी भी हंसते हैं। हंसोगे नहीं तो फंसोगे रोज। Gratitude to everybody. My
पल्लवी, प्रमोद, संपत जी, Mohak, all the Divyas people. Yeah, so we will sit and do. अब हम क्या टांगों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि योग फैलाव है, पहले ठहराव है. शाही जी नमस्कार. आपको आगे आगे जरूरत नहीं हमारी, क्योंकि आप आज्ञान चक्र के धनी हो. ओके ठीक है. I'll continue. Everybody else continue. हाँ जी प्लीज आप जाइए शाही जी के साथ और कैमरामैन. चिल्ड्रन, बच्चे आ जाए यहाँ पर. बच्चे प्लीज सेटल हो जाए. 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 एक्सक्यूज मी. सगळ्या मुलांनी बसून घ्या खाली. सगळ्या मुलांनी खाली बसून घ्या. छान शांत बसायचं. पाठ सरळ ठेवायचे. योगा सेशन छान सुरू आहे. सगळ्यांनी बसून घ्या. ओके बच्चे, वेरी गुड. बच्चे आप ये तितली की तरह उड़ेंगे. दोन्ही पाय जोडा. दोन्ही पाय जोडा आणि फुलपाखरासारखे पाय हलवायचे आपल्याला. तितली की तरह उड़ेंगे. छान मस्त तुमचे पंख फुलपाखरासारखे पसरवा. तितली की तरह उड़ेंगे. थैंक यू, थैंक यू. अभी बच्चे बच्चे अभी हाथ को यूं घुमाएंगे. ब्रीद इन ब्रीद आउट. 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 Breathe in, breathe out. 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 अब यहाँ से देखिए, take a deep breath. देखो हमारे साथ सीमा सिंह जी कर रही है. इतना अच्छा. सेल्फी करे, आओ ट्विस्ट करे, आओ ट्विस्ट करे. धक्का क्यों मारता है? we want your picture. Just one picture. एक पाटिला जी. अफजल यार तू कर रहा है. बस पीछे आ जाओ यार. एक हो जाइए बस. राइट. बस पीछे आ जाओ. पीछे आ जाओ. ये पीछे आ जाओ सब. पोज पोज चाहिए. अरे थोड़ा पीछे तो चलो. ये पीछे आओ ना. आगे क्यों जा रहा है? पीछे आओ. थोड़ा हाथ हाथ थोड़ा सा योगा पोज में. यहाँ देखिए, यहाँ देखिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बच्चे आपको कहाँ जाना पसंद है? दार्जिलिंग, शिमला, महाबलेश्वर, माथेरान, दुबई. हाथों को ये दबाइए और मेरे पीछे गाइए. करेंगे हम योग बार बार. करेंगे योग बार बार. करेंगे योग बार बार. करेंगे योग बार. मैम करेंगे योग बार. Let's
कार्यक्रम पूर्ण दिवसाचा कार्यक्रम आहे. आपण चालू केलं योगापासनं आणि आता लहान मुलं योगाचं प्रशिक्षण घेत आहेत. ही मुलं आहेत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची आणि BMC स्कूल्सची आणि खूप साऱ्या डिग्निटरीजनी जॉईन केलं होतं आज. शाहिद कपूर, श्रीलीला, BMC कमिशनर आणि दिल्लीहून अनुप्रिया पटेल मॅडम आल्या होत्या. तर असे खूप सारे डिग्निटरीज आहेत. पण हा आता उपक्रम चालू होईल योगापासनं. याच्यानंतर त्यांचे मोटिवेशनल स्पीचेस आहेत लोकांचे, मुलांसाठी गेम्स आहेत, ड्रम कॅफे आहे ज्याच्याने त्यांना अजून ऊर्जा मिळेल, त्यांचं जेवण आहे आणि त्याच्यानंतर बाहेरून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचा या मुंबई शहराचा पूर्ण टूर आहे. तर त्यांचा पूर्ण दिवसाचा हा प्रोग्राम आहे. ज्याच्यानंतर मला वाटतं आनंदाने ते परत आपल्या ठिकाणी जाऊ शकतील आणि पुढचे दिवस त्यांचे मोटिवेशनल ठरतील. सकाळी सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मी रोज 1 तास योगा करते. त्यात माझा सूर्यनमस्कार असतो आणि माझे काही बेसिक आसनं असतात आणि श्वासक्रिया असते, प्राणायाम असतो. हे आजच्या जीवनासाठी खूपच जरुरी आहे कारण आज इतका ताणतणाव आहे, कॉम्पिटिशन आहे आणि ह्या सगळ्याला सामोरी जायचं असेल तर फिजिकली मेंटली यू हॅव टू बी व्हेरी फिट. तर त्यासाठी योगा रोज करणं जरुरी आहे. योगाचा मंत्र एक जीवनशैली म्हणून भारतानेच जगभराला दिलेला आहे आणि आज तो जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो आहे. तर मला वाटतं प्रत्येकाने, तुम्ही पण तुमचं जीवन किती ताणतणावाचं असतं, तुम्हाला योगा करणं खूप जरुरी आहे. खरं सांगेन की ते प्राणायाम करतात पण योग करत नाही आणि तेवढं त्यांना करायला सांगावं लागेल. जर आपल्याला दुसऱ्यांसाठी सुद्धा आपलं जीवन जगायचं असेल, लोकांसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, आसपासच्यांसाठी, तर आपली हेल्थ चांगली राहणं जरुरी आहे. त्यासाठी आपल्याला तो 1 तास काढणं योगासाठी दिवसभरात खूप जरुरी आहे. त्यानेच तुम्ही स्वतः हेल्दी राहाल आणि मग जे काही करायचं आहे तुमच्या करिअरमध्ये किंवा लोकसेवा, जे तुमचे एम्स ॲम्बिशन्स असतील ते करू शकाल. पावसाने सुद्धा हजेरी जी आहे ती मुंबईत लावलेली. मागच्या अनेक दिवसांपासून आपण पावसाच्या प्रत्यक्ष पाणी टंचाईला सामोरे जात होतो. काय मला वाटतं आता पाऊस येणं जरुरी आहे आपल्या शेतकऱ्यासाठी, आपल्या पूर्ण ॲग्री इकॉनॉमीसाठी. तर आपण सगळे प्रार्थना करूया की पाऊस आता वेळेवर होऊन चांगला पडो. इंटरनॅशनल योगा डे का आपले एक बडे कार्यक्रम. एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. शेतकऱ्यांचे मुलं आले आज, त्यांच्याबद्दल काही सांगाल? ही वेगवेगळ्या गावांमधनं शेतकऱ्यांची मुलं आलेली आहेत आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अशी आहेत. तर मला वाटतं ह्या मुलांसाठी हा दिवस एक डे आउट आहे, ज्यांनी ते खूप ऊर्जा घेऊन परत जातील आणि त्यात योग प्राणायाम तर आहेत, वेगवेगळी मोटिवेशनल स्पीचेस आहेत. पुढे जॅकीजी पण येणार आहेत आणि ते सुपर 30वाले जे स्पीकर आहेत ते येणार आहेत. ड्रम कॅफे आणि गेम्स आहेत. त्याच्यानंतर त्यांची या पूर्ण शहराची एक टूर आहे आणि त्यानंतर जेवण करून ते जाणार आहेत. मला वाटतं आज दिवस त्यांचा चांगला चिल्ड्रन्स डे आउट होईल आणि त्याच्याने त्यांना एक ऊर्जा मिळेल. So we all know that International Yoga Day has been brought on in the limelight in front of the whole world because of our Prime Minister Narendra Modi ji. Because of him, it is celebrated internationally and taken in as a lifestyle, a way of life. So that's a full credit to Modi ji. पण यासाठी आपण सगळ्यांनी we all have to practice yoga 1 hour at least every day, including pranayam. मी फक्त आज दिवस इतका सुंदर आहे की मी कोणाला सल्ला नाही देणार, पण एक गोष्ट म्हणू शकते की सगळ्यांची आपली एक पोझिशन असते, तिथनं आपण ऑपरेट करतो. तर आपल्या आपल्या ठिकाणी जरी आपल्याला छान ऑपरेट करायचं आहे, आज डेमोक्रेसीमध्ये राजकारणात विरोधकांची पण तेवढीच गरज असते. तर त्यांनी पण ऊर्जेने आणि सच्चाईने ऑपरेट करायचं असेल तर योग रोज 1 तास करावा. इंटरनेशनल योगा डे है, किस तरीके
आपल्या हमारे भारत ने बहुत कुछ दिया है दुनिया के, उसमें से एक हीरा जो है वो योग है, आयुर्वेद है, बहुत सारी चीज़ें भारत ने दी है। तो मुझे लगता है कि योग जो हमने ही लोगों को प्रीच किया है, बताया है, हमने करना ज़रूरी है और शुरुआत हमसे होती है, मुझसे होती है और आपसे होती है। मैम व्हाट्स योर मैसेज दिया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? I think so. Yoga is the best way for healthy aging. As you age, mentally, physically, if you want to stay strong and stout, yoga is the way for you. Because yoga, even when you do weights, on your functional training of yoga, you can always maintain your muscles also if done properly. Ma'am, one last question. What do you feel? What is your message for Gen Z? जेन जी को तो मैं ये मैसेज दूंगी, आजकल जेन जी भजन जैमिंग कर रही है, आजकल जेन जी अवेयर है, भजन जैमिंग जैसी चीज़ें कर रही है। और मैं इतना ही उनको बोलूँगी कि योग प्राणायाम अपने लाइफ में रखिए, अपनाए योग प्राणायाम को, ताकि आपकी जो आगे की लाइफ है, आपके स्ट्रगल्स है वो इजी हो जाए और आप हर डिफ़िकल्टी को बड़ी स्ट्रेंथ से उनका सामना कर पाए। इधर भी बोलते आ Thank you. Side. Wait. सर आपके लेफ्ट में देखिएगा, लेफ्ट में उधर भी लिखिए। हेलो एवरीवन, आई एम मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है दिव्यांश फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आज यहाँ पर आई हूँ। और हर साल अमृता जी ये कार्यक्रम करती हैं और जो कि बच्चों को वहाँ से किसान जो कि हमारे किसान हैं उनके बच्चों को हर साल यहाँ पर बुलाती हैं और उनके साथ योगा दिवस मनाती हैं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो बीमार पड़ने पर दवाइयों के सहारे अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन वह व्यक्ति अपना सबसे कुशल चिकित्सक होता है जो कि अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा फेरबदल कर अपने आप को बीमारी न होने दें। और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम कोशिश करें कि प्रकृति को भी हम वापस लौटाएं, अपने पर्यावरण की रक्षा करें। योग के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखें। कहते हैं कि तन को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे, मन को छोड़ दिया भगवान के भरोसे, सब कुछ छोड़ दिया दूसरों के भरोसे, तो तू क्या खाक जिएगा। योगा कर और अपने भरोसे जीना सीख, अपने भरोसे जीना सीख। और हम हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उनके कारण ही विश्व को ये योग दिवस मनाने को मिला है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।
जगह छोड़ के खड़े थे, खरीद लिया क्या? भाई कैसे लग रहे हैं आज इंटरनेशनल योगा डे के मुहिम में आने पर? हमेशा अच्छा लगता है जब हाँ भाई भाई मेरे को नहीं, सबको करना चाहिए। और इतना लाइट क्यों मारा है? कर क्या रहा है तुम लोग? थोड़ा तो लाइट कम कर रहा, खोलने गया है, लेके जाओ वापिस। बहुत लाइट है बड़ू। भाई वो सेट है, सॉरी। अच्छा बात कुछ नहीं है, योगा डे है, हर रोज होना चाहिए। आज का दिन है, मतलब तुम लोग को याद दिला रहा है कि भाई सालों साल करने का, सांस पे ध्यान रखने का, और तो कुछ है ही नहीं। अपन जिंदा काय के लिए अपन सांस है ना भाई, और सांस कौन देता है? तू मेरे को कार्बन देगा, मैं तेरे को कार्बन देगा, अपन दोनों क्या फेंक रहे ले? कार्बन ना, एक तो आइटम है, दरिया है और ये है। तो इन लोग का भी वाट नहीं लगाने का, खाली सांस लेने का, ऊपर वाले का नाम लेने का, जब उठा लिया निकल लेने का। हैप्पी फादर्स डे एंड हैप्पी योगा डे। Thank you. Just one picture with Anand ji. Come on, Superb. असली हीरो वहिनी एक गाणं सोड तुमच्या दोघांचं चल बाबा, चल, थैंक यू। मैडम हटो ना सामने से। वो लंच रेडी हो रहा है, आप रुकिए थोड़ी देर में, 15-20 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी विचार आराम से धन्यवाद मंजू जी। सगळ्या मुलांनी बसून घ्यायचं सगळ्या मुलांनी बसून घ्यायचं है, बच्चों बैठ जाइए। जैकी श्रॉफ सर हमारे साथ यहाँ पे होने वाले हैं, सभी लोग बैठ जाइए। सगळ्या मुलांनी बसून घ्यायचं है शांतपणे। जैकी सर अपने बोलणार आहेत, सगळ्या मुलांनी बसायचं। सभी शिक्षकों से एक बार फिर से निवेदन करना है कि बच्चों को वो बिठा दें शांति से। तो है ना, हम लोग कर रहे काम। नहीं, आपका जोर आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा पीछे। आपका मतलब खिड़की है, मैंने किया आपको। देखिए
सर्वांनी शांतपणे बसायचं आहे. सभी बच्चों ने शांति बनाए रखनी है. हमारे साथ वैसे दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है और भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान लोगों का प्रिय बनाता है. प्लीज वेलकम आवर रियल एंड अमृता जी से निवेदन है कि जैकी जी का सम्मान करें. पार्टी मैडम, थोड़े पार्टी. धन्यवाद जैकी सर. धन्यवाद अमृता मैम. जैकी सर, बच्चे आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है. The stage is all yours. No, sir, I don't think you need any questions. अच्छा सर, अभी आप बताइए कि आपको यहाँ कर कैसा लग रहा है? गुरु लोग, बाबा, बच्चे लोग, एक नंबर, फुल पावर रखने का बच्चा, सांस पे ध्यान रखने का और हरा झाड़ उगाने का. और कुछ नहीं है. सांस लेते अपन, इसलिए अपन इधर है अभी खड़ा. सांस बंद तो अपन कल्टी, समझ गया? इसलिए झाड़ की इज्जत कर, अपने मातृभूमि की इज्जत कर बेटा. और योग दिवस है आज का. एक दिन योग नहीं, लंबा सांस लेने का, लंबा, और अच्छा ध्यान रखने का, अपने भेजे को ठंडा रखने का. समझा? भेजा ठंडा, हाथ पैर गरम, पेट नरम, गेम सेट, कोई टेंशन नहीं उसके बाद. समजलंस ना? माहित ना मी काय बोलतो मला? हो, ऐकायचं आणि श्वास घ्यायचं बरोबर, पण सोडायचं पण बरोबर. समजलंस काय? आणि योग दिवस आहेत ना आज. तुम्हाला, आप सबको, मेरे बच्चे, उन लोगों को भूख भी लगा वो कुछ गेम चल रहे उधर. ऑल माय लव, कुछ जास्त बोलायचं नाही. हवा ज्यादा, कार्बन ज्यादा फेंकने का नहीं मुंह से, समझा ना? अगर कार्बन फेंक रहा है तो ये लगाने का, क्या लगाने का? ये लगाने का. हाँ, एक नंबर. चलो एंजॉय योरसेल्फ बच्चे लोग. मैं बैठेगा इधर, जो योगा करा रहा है वो कैसा कर रहा है मैं देखूंगा. मेरे से होता है तो मैं भी करूंगा. हो का? तो मी थांबतोय इथं, जाणार नाही. हो का? मी खाली येऊन बसतो नंतर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. हॅपी योगा डे आणि सर्वांना राम राम आणि नमस्कार. दिव्याज फाउंडेशन, ऑल द बेस्ट अँड कीप डुईंग ऑल दिस ब्युटिफुल वर्क दॅट यू डुईंग. खूपच मस्त काम करतात आणि करत राहा. लेट देम बी हॅपी, लेट चिल्ड्रन बी हॅपी, लेट पीपल बी हॅपी. भानगडी नको, शेजारी जास्त बघायचं नाही, आत बघायचं, आत काय चाललंय ते बघायचं, बाहेर नाही बघायचं. समजलंस का? और मला जय महाराष्ट्र भेटूया. नहीं सर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज स्टेज पर बने रहिए. यस, क्योंकि अभी आगे हम 30 बच्चों का सम्मान करने वाले हैं. उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देने वाले हैं. तो ये जैकी सर के हाथों होने वाला है. स्टेज पर बने रहिए. दिव्यज फाउंडेशन की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो है ही, उसके साथ साथ विशेष गिफ्ट पैक की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्कूल बैग, वाटर बॉटल और पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी शामिल है. आज मंच पर आने वाले 30 विद्यार्थी जिनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, वो आप सभी विद्यार्थियों के प्रतिनिधि हैं. लेकिन याद रखिए, आप सभी विद्यार्थी कार्यक्रम के बाद जाने से पहले जरूर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन लीजिए. जॅकी सर ने मुझे आज्ञा दी है की मी मराठीत बोलायला पाहिजे. म्हणजे मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जे बोलायचं बोला, पण यांना पण यू हॅव टू. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. सर, याहून जास्त आनंद मला होऊच शकत नाही. जॅकी सरांकडनं मला ही आज्ञा मिळाली आहे, ऑर्डर मिळाली आहे की मी आता मराठीतनं बोलायला पाहिजे. आय एम शुअर मला अमृता मॅम सुद्धा माफ करतील, अलाउ करतील. बात यह है कि हर भाषा में थोड़ा थोड़ा समझाने का. बराबर है सर. क्योंकि एक ही भाषा शायद समझे नहीं. अगर ज़्यादा हिंदी नहीं समझे, इंग्लिश नहीं समझे, तो अपनी अपना
जो जहाँ से बच्चा है वो भी भाषा बोलणार. सर लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ, माझी अशी इच्छा आहे की जॅकी सर जी भाषा बोलतात ना ती जमायला पाहिजे. नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है. भोले भाले मत वाले आँखों के तारे, भोले भाले मत वाले आँखों के तारे. Anyway, बड़ा गाना बहुत अच्छा है. हम लोग को all my love please. थँक्यू सो मच सर. मी अमृता मॅमना सुद्धा स्टेजवर येण्याची विनंती करते. अमृता मैम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप भी स्टेज पर आइए. और मैं मुखर्जी से भी निवेदन करती हूँ कि वो भी स्टेज पर आए. एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए जैकी सर के लिए, अमृता मैम के लिए और मुखर्जी के लिए. विद्यार्थियों से निवेदन है कि नाम पुकारे जाने पर वे एक एक करके मंच पर आए. सम्मान प्राप्त करने के बाद कृपया मंच पर ही बने रहे, क्योंकि अंत में हम सभी का एक ग्रुप फोटोग्राफ लिया जाएगा. तो आइए तालियों के साथ अपने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाइए. सगळ्यात आधी मी बोलवणार आहे किरण परमेश्वर बोंद्रे. सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हम लोग यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. किरण बोंद्रे, जोरदार तालियां अपनी छोटी सी किरण के लिए. शिवतेज आवारे, दिव्यज फाउंडेशन की तरफ से ये स्कूल बैग दिया जा रहा है और वो आप सभी को दिया जाएगा. बाबू समोर बघ, समोर. ये स्कूल बैग में पतंजलि के प्रोडक्ट्स है, वाटर बॉटल है. बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यज फाउंडेशन का. ये 30 बच्चे आप सभी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन याद रखिए आप सभी को ये गुडी बैग मिलने वाला है. आप वो कलेक्ट कर सकते हो. ओम गाड़गे, 5वीं 6वीं कक्षा के ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, जिनको मिल रहा है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और एक बढ़िया सा गुडी बैग दिव्यज फाउंडेशन की तरफ से. आर्यन दास, आयुष गोरे, आदित्य गुड़वे, ऋतिका नागे, स्वराज घोड़के, मानसी दत्तू पाटिल, अनन्या तौर, आयुष गिरी, पूर्णिमा जाधव, जोरदार तालियां आपके दोस्तों के लिए. ईश्वरी खंडपटे आणि कुणाल वाघ. आज मंच पर आए हुए ये 30 विद्यार्थी, इनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया गया है. वो आप सभी विद्यार्थियों के प्रतिनिधि है.
कार्यक्रम के बाद जाने से पहले वॉलेंटियर से आप सभी बच्चों ने अपना गिफ्ट बैग उनसे लेना है। तालियां हो जाएंगे एक बार। आयुष गिरी, पूर्णिमा जाधव, ईश्वरी खंडपटे, स्वराज मोडके, मानसी पाटील, स्वराज मोडके, रिंकी चौरसिया, आरव जायसवाल, राज गुप्ता, आरव जायसवाल, अंशिका वायदंडे, फैजल हाशमी, अनुराधा कुमारी रॉय, गौरव ठाकूर, प्रमिला पंडित। सगळ्या मुलांना जे मिळालेलं आहे ते त्यांनी वाजवायचं नाहीये। आपल्यासोबत जॅकी सर आहेत, अमृता मॅम आहेत, आपल्याला ते जे बोलणार आहे ते ऐकायचंय शांतपणे। सगळ्या मुलांनी शांतपणे बसायचंय। ओके ओके चंदना भीम सिंह, शिवानी कनौजिया, सगळ्यांनी शांतपणे बसायचंय। कुणीच वाजवायचं नाहीये तुम्हाला जे मिळालेलं आहे ते।
सगळ्या शिक्षकांना मी विनंती करेन की त्यांनी सगळ्या मुलांना शांतपणे बसवायचं आहे। सभी शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगी कि बच्चों को शांति से बिठाएं। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे जॅकी सरांसाठी, अमृता मॅमसाठी, मुथाजींसाठी। धन्यवाद विद्यार्थियों, और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। दिव्यज फाउंडेशन की सुंदर पहल के लिए एक बार तालियां हो जाइए। इन सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांतपणे बसायचं आहे। अजून खूप छान छान कार्यक्रम व्हायचा आहे, खूप चांगले चांगले परफॉर्मन्सेस आहेत।